Now this time we will solve some numericals, some problems which is related with the absolute error and relative error. देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है in an experiment the value of the refractive index of a glass was found to be, and here is the six value is given 1.54, 1.53, 1.44, 1.54 and 1.56 and 1.45. Now in successive measurement means it is by the continuous. Calculate the first is the mean value, second is the absolute error, third is the mean absolute error, and fourth is the relative error, fifth percentage error, and the result with the absolute is the sixth. So छह आपको ऑब्जर्वेशन करना है, छह कैलकुलेशन करना है वन बाय वन. तो ये सिंपल, अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जितना भी ऑब्जर्वेशन बाय द एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको लिख रहे हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन इज इक्वल टू 1.54, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 1.53, refractive index of third is equal to 1.44, refractive index of fourth is equal to 1.54, then refractive index of 5 is equal to 1.56 and refractive index of 6 is equal to 1.45. Now first, that is to calculate the mean value of refractive index, mean or absolute value, that is mean or average value, mean value of refractive index, refractive index. अब ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिए, और क्योंकि मीन है तो मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, एंड दैट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 and that all the six will divided by the six terms. Now just substitute the value which is written here, जिसको हमने अभी यहाँ लिखा है, इसको अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बैठाने जा रहे हैं. 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1. Everywhere is the point. 1.54 plus 1.56 plus 1. Here it is the 4, 5, and these six term will divided by the 6. Now just make a calculation here on that case refractive index. अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें 5, 6, 11 like this, तो ऐसे में ये आएगा 9.06 divided by 6. Now that will give the result of 1.51. So refractive index, mean refractive index is the 1.51. That is the very close to the true value. अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमको सेकंड निकालना है absolute error, और absolute error means the error which is the difference of true value to that of the observed value or measured value, और इस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर के रूप में लेंगे. और ऐसे में पहला मीन निकालिए, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मीन हमारे पास कितना आया, इसको यहीं रखते हैं 1.51. कितना है, तो यहां लिख देते हैं दैट मीन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द 1.51. और अब सेकंड निकालने जा रहे हैं. सेकंड इज द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर. और एब्सोल्यूट एरर के लिए अभी हम देख रहे हैं, पहला एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज डेल्टा μ1 इज इक्वल टू μ1 दैट इज द मीन वैल्यू माइनस μ1. सेकंड डेल्टा μ2 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस μ2. Third delta μ3 is equal to mean value of the refractive index minus μ3. Then after for the fourth refractive index mean or by the fourth of the observation. इसके बाद पांचवा के लिए, फिफ्थ के लिए, now fifth mean minus
ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिफ्थ, देन डेल्टा न्यू 6 इज इक्वल टू मीन माइनस ऑफ द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। और इसका वैल्यू सभी का रख दे रहे, यहां पर मीन वैल्यू आपने निकाला 1.51 माइनस यहां पर कितना आ गया 1.54, इसके साथ आ गया तो ये हो गया 1.51, सभी का पहले लिख देते 1.51, दैट इज द मीन वैल्यू 1.51, फिर अगेन हियर इट इज द 1.51, in for the sixth one 1.51 minus for the second 1.53, third 1.44, then after fifth 1. Now third fourth that is the 54 and 1.56 and then 1.5, how much did 1.45. So these are the absolute value. Now we see here that is the minus 3, 0. We will write the 0.0, that is the relation in minus. Measured value is greater than the true value or mean value. So on that case it will be the minus of 0.03. Now यहाँ पर भी देख रहे हैं इससे बाद वाला भी 2 ज्यादा आ रहा है 0.02, देन आफ्टर इसको देख रहे हैं दैट इज यहाँ पर 4 ये घट रहा है और यहाँ पर 1 ज्यादा है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे 0.07, है ना, और यहाँ पर कितना आ गया 1 है 4 है, फिर यहाँ पर माइनस हो गया 0.03, यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 1 और 6 है तो ये हो गया माइनस 0.05। नाउ यहाँ पर भी माइनस करेंगे 5 और यहाँ 1 आ रहा है दैट इज द पॉजिटिव हो गया 0.06। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल रहा है, ऐसे में एरर इज ऑलवेज एरर, मींस व्हाटएवर मे बी द positive or negative, but we consider it as a positive one. Simple way में हम लोग समझे, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू 100 है और उसमें कोई ऑब्जर्वेशन में निकाल रहा है 90, इसका हमने वो 10 का एरर कर रहा है। उसी तरह अगर कोई 100 ट्रू वैल्यू है और कोई ऑब्जर्व वैल्यू में 110 ला रहा है तो वहां पर भी 10 का एरर है। Error, the mistake whatever may be, it is either positive or negative, will considered as a positive. क्लियर है बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो इसको हमेशा हम लोग एरर, गलती को हमेशा गलती लेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये सारा क्या हो गया 0.03, यहाँ हो गया 0.02, यहाँ हो गया 0.07, यहाँ पर आ गया 0.03, here it is the 0.05, here it is the 0.06. now these are the absolute error। अब absolute error हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है that is the third one mean absolute error। so mean absolute error लेने के लिए अब हमने absolute का सारा रिलेशन ले लिया, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं that absolute value, ताकि मीन को निकालें। यहाँ पर देखो ये वैल्यू आपके पास आया हुआ है, अब हमको मीन निकालना है, एब्सोल्यूट आपने निकाल लिया और दैट इज द मीन वैल्यू, इसको वहां से हम यहां लिख दे रहे हैं दैट इज द 0.03, इसका सेकंड का आया 0.02, थर्ड का आया 0.07, फोर्थ है 0.03 एंड फिफ्थ है 0.05 and sixth है 0.06। now third part क्या हमको कैलकुलेट करना है that is the mean absolute error। तो अब यहां पे ले रहे हैं थर्ड पार्ट that is mean absolute error, mean absolute error। देखो पहले हमने निकाला ट्रू वैल्यू, फिर निकाले एब्सोल्यूट का, अब
अब मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, सो डेल्टा म्यू बार दैट इज इक्वल टू, सारे का लिखेंगे, डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 प्लस डेल्टा म्यू 6। सो यहां पर एंड दैट ऑल डिवाइडेड बाय द 6। द वैल्यू वी हैव, वैल्यू हम यहां देख रहे हैं, सो हम इसको लिख रहे हैं डेल्टा म्यू बार दैट इज द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 0.03 plus 0.02 plus point is here 0.07 plus 0.03 plus 0.05 plus 0.06 and all this divided by the 6। तो ऐसे में यहां पर हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, 6 5 11 3 14 7 21 और ये 2 23 और 3 26, तो यहां आ गया 0.26 डिवाइडेड बाय 6। नाउ ये हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.4, 24 हो गया, 2 यहाँ आ रहा है, तो हम पॉइंट के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और 3 टाइम्स में चला जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसे में 0.4 कोई राउंडिंग ऑफ में लेकर के रखते हैं, इन राउंड ऑफ, सो 0 पॉइंट दैट इज 0.433 एंड रैकरिंग इज हियर। सो ऐसे में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.04 एंड दैट इज द, ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। राउंडिंग ऑफ करके हम इसको यहां पर सिंपल ले लिए। अब देखो फोर्थ कंडीशन है रिलेटिव एरर निकालना। तो रिलेटिव एरर के लिए यहां हम कंसीडर कर लेते हैं रिलेटिव एरर दैट इज द, ये रिलेटिव एरर को देख रहे हैं यहां पर, तो रिलेटिव एरर इज व्हाट, इट इज द रेशियो बिटवीन द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर दैट इज द फोर्थ रिलेशन, फोर्थ हम निकाल रहे हैं रिलेटिव एरर। और इसमें क्या देखें, दैट इज द डेल्टा ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, now it is the ratio between the mean of the absolute error to that of the true value or mean value or average value, so that two we have, दोनों चीज हमारे पास है, यहाँ पर 0.04 और ये हो गया 0.04 and that by the 1.5। अब इसका रिलेशन हमारे पास आ रहा है और ये रिलेशन अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 0. इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 0.03 के आसपास आएगा, ठीक है। और ये रिलेशन या आप अभी इतना भी रख सकते हो, मान लो हमने यहाँ पर इसी रिलेशन को लिया है, तो अब यहाँ पे निकालना है परसेंटेज एरर, तो हम इसके साथ परसेंटेज ले लेंगे, तो 5th नंबर हो गया परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर हो गया डेल ऑफ द म्यू परसेंट इज इक्वल सिंपल 0.04 into 100 by 1.5 and that goes in the percentage। और ये परसेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज द परसेंट इज इक्वल टू 3%, ठीक है। ये कितना हो गया, approximately that become the value of 3%, और ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब देखने जा रहे हैं रिजल्ट विद द एब्सोल्यूट एरर। तो रिजल्ट विद द एब्सोल्यूट एरर जो हम लोग निकालेंगे, सिंपल रिजल्ट विद द एब्सोल्यूट एरर,
result with absolute error। अब ये हमारा कितना नंबर है, 6th नंबर है। अब एब्सोल्यूट एरर आप यहां लिखे 0.04 और रिजल्ट में ट्रू वैल्यू भी है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, ट्रू वैल्यू प्लस मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, जो आप यहां कंसीडर कर रहे हैं मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, इसका वैल्यू रखेंगे। सो रिजल्ट इज इक्वल टू नाउ मीन आपके पास कितना है 1.51 प्लस माइनस, नाउ प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 0.04 एंड दिस इज द रिजल्ट। सो हाउ वी सॉल्व दिस वन, कैसे सॉल्व किए, तो जितना भी चीज है उसमें हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करके इसको देखें। अब एक प्रश्न और इसके साथ देखते हैं। चलो यहां पर सेकंड प्रश्न दैट इज द, देखो यहां पे अभी सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज सच। मींस यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और इस 5 ऑब्जर्वेशन को में हमको क्या क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड। दैट मींस यहां पे फाइंड द टाइम पीरियड माने मीन वैल्यू निकालना है। यहां पे क्या निकालना है, दैट इज द मीन टाइम पीरियड। उसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, और परसेंटेज एरर जाने से पहले हमको यहां पर मीन पर से एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है। तो क्या क्या देख रहे हैं सॉल्यूशन बनाने वक्त, और ये आप खुद से करेंगे, हम सिर्फ यहां हिंट्स दे दे रहे हैं कि यहां पे फाइंड द टाइम पीरियड में मीन निकालेंगे, मीन ऑफ द ऑल। तो मीन क्या हो गया, दैट बार इज इक्वल टू mu1 प्लस इन प्लेस ऑफ mu1 नाउ इट इज द टाइम पीरियड, सो t बार, और t बार को आप क्या लिख रहे हैं, t1 प्लस t2 प्लस लाइक दिस अप टू द t5 डिवाइडेड बाय 5। सो मीन निकल जाएगा, सारे का वैल्यू पुट कर देंगे यहां और 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर आ गया एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो एब्सोल्यूट एरर भी निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कहां से मिल रहा है यहां पर, दैट इज द डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3, डेल्टा t4, डेल्टा t5 एंड डेल्टा t6, और इसका वैल्यू आप यहां लिख देंगे, माने मीन माइनस t1 एंड सो ऑन, इसी तरह करते चले जाना है, मीन माइनस t2 एंड सो ऑन, इस तरह आप वैल्यू बैठाएंगे और इससे टोटल का आपको एब्सोल्यूट निकल जाएगा। सभी में आप वही काम करेंगे, मीन माइनस t3, मीन माइनस t4, मीन माइनस t5 एंड मीन माइनस t6। एब्सोल्यूट निकल गया, तो अब मेरा तीसरा काम करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब डेल्टा टी बार, और फिर इसी में सारा वैल्यू रख दिए, डेल्टा t1 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा t5 एंड दैट डिवाइडेड बाय द 5। यहां पे लिख सकते हैं, एक और लिख दो, डेल्टा दैट इज द t2 और यहां पे प्लस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। तो मीन एब्सोल्यूट निकल गया, तो हम आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर के लिए पहले रिलेटिव निकालना होगा, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के लिए क्या होगा, डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ द t एब्सोल्यूट बाय द t मीन वैल्यू। जब रिलेटिव निकल जाएगा तो परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर में आपको क्या लिख रही है, परसेंट हो गया, दैट इज द परसेंटेज एरर, और यहां पर कितना हो गया, तो ये आप लिख रहे हैं दैट इज द डेल्टा t परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा t माइनस t बार इनटू 100, और ये क्या निकला, परसेंट निकल गया। सो इस तरह करके हम वैल्यू निकालेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे, तो ये प्रैक्टिस भी हो गया और हम लोग जान भी गए कि कैसे एरर के साथ सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, ओके, थैंक यू।